PPC چینل آپ کا اپنا چینل۔ جنگ لڑ یسو جی میری جنگ لڑ، جنگ لڑ یسو جی میری جنگ لڑ، دے دے شفا کر کرم دی نگاہ، دے دے شفا کر کرم دی نگاہ، معجزے اج کر جنگ لڑ یسو جی میری جنگ لڑ، جنگ لڑ یسو جی میری جنگ لڑ۔ مینو چھو کے میرے شافی جی دور بیماریاں کر، مینو چھو کے میرے شافی جی دور بیماریاں کر، کمزور میں تو زوراور خدا۔ ہم ڈریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ اے خدا ہمارے آسمانی باپ، ہم بڑے ادب سے بڑے احترام سے تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں اور شکر کرتے ہیں اس قیمتی وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم تیری قدموں میں آ کر ہم تجھے سجدہ کریں۔ آج کی عبادت کا آغاز ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کرتے ہیں اور اے خدا اپنے معزز مہمانوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جن کو تو نے باقاعدگی ہمارے درمیان میں پہنچایا ہے۔ ان کا یہاں پر آنا تیرے جلال کا سبب ہو اور آج کی عبادت پر کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور الہی کلام نازل کر کے ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دینا۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے تشریف رکھیں اپنی جگہ پر اور دعائیں کے ساتھ مل کر کلام کی پرستش کریں۔ ابھی یہ آپ کی ناظرین کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ BBC چینل پر چلے گی، آپ لوگوں کو ترتیب اچھی ہوگی، آپ لوگوں کو نوٹس آئیں گے اور آپ اس کو YouTube پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ پورے ورلڈ میں آپ لوگوں کی آواز آپ لوگوں کی چلی جانے، تو اگر ہماری ترتیب اچھی ہوگی تو یہ آپ کے چرچ کا نام، آپ لوگوں کا نام ہوگا، آپ کے ایریا کا نام ہوگا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی طرح ترتیب اچھی طرح یا اپنی فیس چیک موبائل کھڑے ہو بتاتی ہے اسی طرح آپ کریں، ٹھیک ہے؟ دائرہ کی بنانا ایک ہی لوگوں کا محنت ہے اور سامنے ایسے بھی اپنی اچھی ترتیب بنائے اس طرف کلیسیا کی طرف آپ نے فیس کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے موبائل پہ BBC چینل کو سرچ کریے گا تو YouTube پر BBC چینل ہے اور اس کا پروگرام آپ کو YouTube پر آپ اپنے موبائل پر اس کو دیکھ سکیں گے۔ خدا و کو خصوص کریں جناب ناصری کا جب کے ساتھ دعا کریں۔ قدوس 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 خدا خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے یہوہ پاک خدا، تو جو یہوہ رافع ہے، تو جو یہوہ یری ہے، تو جو یہوہ زور ہے، تو جو یہوہ طاقتور ہے اور تو ہی اکیلا ہم اور تعریف اور ستائش کے لائق ہے۔ میرے رب خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جس کو تو نے ہمارے خاطر بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ کی زندگی پائے۔
खुदाई सालों तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी सजा देगा कबूल करते हैं और उसका ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे खातिर दुख उठाया, सलीब पर चढ़ा और मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने फरमाया मौत फतह का लुत्फ हो गई, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई। ऐ खुदा तू जो हैदम करूम है, तू जो गफूर रहीम है, तू जो सासर कौल है, तू जो आज और कल बल्कि अबद की यकसा है, तू जो हाल और गैब है, तू जो हमले मुश्किलात है, तू हमारा है, तू सुदूर है, तू ही तारीफ के लायक है, तू ही सदाइश का लायक है। तूने महीनों इंसान को इसलिए बनाया कि वो तेरी आबाद करे, वो तेरी परस्तिश करे, वो तेरी सदाइश करे, क्योंकि आसमान पर जो कुछ ऐसा ना कुछ तेरा है, जमीन पर जो कुछ ऐसा ना कुछ तेरा है। तो अपनी ताकत के स्वरूप से, अपनी अजमत के स्वरूप से, अपने हुस्न के स्वरूप से बसीरत सरकार हुकूमत करता है। सोना चांदी जिंदगी सारी नियमतें तुझ ही से मिलती हैं, क्योंकि मेहरबान खुदा तू ही सरफराज करता है और तू ही पसंद करता है, तेरा ही नाम खास है। ऐ मेहरबान खुदा, ऐ बादशाह के बादशाह, ये तेरी खुदा हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमको रहने के लिए, बसने के लिए आज के दिन आयत की। ऐ मेहरबान खुदा, तू सच्चा और जिंदा और आदल खुदा है, तू अपने लोगों को फिक्र करता है। तूने हमको जमीन का नमक बना के इस दुनिया में रखा हुआ है। ऐ मेहरबान खुदा, हम करदार और अमल से इस दुनिया में पहचाने जाएंगे कि मसीह लोग हैं, ये यीशु मसीह के नाम मानने वालों हैं, क्योंकि तेरा यीशु मसीह के आसमानी दावा है कि मैं दुनिया का नूर हूँ। उसका लसानी दावा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने लोगों की खातिर जान दे देता है। रोटियों पर बैठने वाले खुदा तेरा बेटा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान को दे दिया। उसने हमारी खातिर अपना कीमती खून बहाकर हमको मोल लिया। वो भी फरमाता है कि मैं राहत और जिंदगी हूँ, वो भी फरमाता है मैं क़यामत और जिंदगी हूँ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। वो भी फरमाता है ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। उसकी आमद में इज्जत में लाखों करोड़ों फरिश्ते फरमाते हैं कि ज़िबा किया हुआ खुदा ही कुदरत और दौलत और इज्जत और तब्दील और हुक्म के लायक है। मेहरबान खुदा, मैं मिन्नत करके तेरी इल्तिजा करता हूँ आए हुए सारे मेहमानों के लिए। मेहरबान खुदा, जो नहीं आए उनके लिए तुझसे बरकत और सलामती मांगता हूँ, और जो लोग तेरे घर में आए हैं और जो आ रहे हैं हम सब के लिए बरकत और सलामती को मांगता हूँ। तेरी इंतजामिया के लिए जिसने इस प्रोग्राम का इंतजार किया है उनके लिए भी बरकत और सलामती को मांग लेता हूँ। मेहरबान खुदा, तेरी कलाम ये बात बड़ी खूबसूरत मरमूम है कि तुम अल्लाह हुकूमतों के ताबे रहो। हुकूमतें और रियासतें जो खुदा की तरफ से आती हैं, मेहरबान खुदा तेरी इस हुकूमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और आला और इदारों के लिए बरकत और सलामती को कत्ल और दलाई को मांग लेता हूँ। हुकूमत की सारी मशीनरी के लिए मेहरबान खुदा कत्ल और दलाई को मांगता हूँ। ऐ खुदा, सारे प्रोग्राम को एक बेटे यीशु के हाथ में देता हूँ। अपना कुदरत और हाथरा और मेहमान को सारे इंतजाम को तेरा पाक रोल को हैंडल करे। यीशु मसीह के वसीला से मेरे मुंह की आवाज़ और दिल के ख्याल को कबूल करना सोए और बख्श दे। आमीन। मेरे दफा हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की आमीन। हम गीत गाएंगे, हर आँखों को देखेंगे, यीशु को चलाते आ रहे हैं। यीशु बदलाते आवेगा,
हर आँख देखेगी यसु बदलाते आवेगा तेरा पाक दिल होएगा और जश्न मनावेगा हर आँख देखेगी बदलाते आवेगा तेरा पाक दिल होएगा और जश्न
जीवानिया दिया सदा दे जीवानिया दिया सदा दे जीवानिया दिया सदा दे जीवानिया दिया सदा दे ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਕੱਚਿਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੇਕ ਯਿਸੂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਕੱਚਿਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੇਕ ਯਿਸੂ
को झुकाएं और अपने आप को खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। सारी कलीसिया से दरख्वास्त है कि आंखें बंद करें और खुदा के आगे झुक जाएं और अपने लिए कलाम को मांगें। हम बहन रुफैला के साथ मिलकर इस कलाम की तैयारी के लिए दुआ मांगें। सबको सलाम। हम बात करें, खुदा की रोशनी को महसूस करें और दुआ करें। खुदा मेहरबान खुदा खुदा हम आपका शुक्र करते हैं इस घड़ी इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। हम जिंदों की जमीन पर खुदा बाप आपका इकरार करते हैं कि खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन खुदा बाप जो हम मना रहे हैं हमारी आज़ादी का दिन, क्योंकि खुदा बाप हम आज़ाद हो चुके हैं और खुदा बाप की 14 अगस्त सबको मुबारक कहती हूँ वापस आने आपका शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त के लिए इस खैमा के लिए साहित्य के लिए जो खुदा बाप आपने अपना बड़ा फजल बख्शा, अपना करम किया कि हम सब आपकी हज़ूरी में इकट्ठे हैं और आपका शुक्र बजा करते हैं। खुदा बाप हम सबके साथ होना, हम सबकी हाजिरी को कबूल करना हमारा आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा बाप हमारे आज का गीतों का गाया जाना, बजाया जाना और खुदा बाप जितनी भी दुआएं हो चुकी हैं उनके लिए आपका शुक्र करते हैं कि खुदा बाप आपने हमें ये फजल अता किया है। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा बाप आज आए हुए मेहमानों के लिए जो हमारी हाइवे में खुदा बाप इस वक्त हमारे साथ जमा है और खुदा बाप हमारे साथ मिलकर इस दिन को मना रहे हैं। जिस तरह खैरियत से हम उसी तरह वापस खैरियत से जाएं। आज का सारा प्रोग्राम आपके हाथों में देते हैं जो गुजर चुका है, जो भी होने वाला है आपकी मर्जी के मुताबिक हो खुदा बाप। और स्पेशली दुआ करती हूँ आज की कलमा कलाम के लिए कि ये कलाम जो हम तक पहुँचने वाला है खुदा बाप, या आपकी मर्जी के मुताबिक अपने ज़हनों को तैयार करें, अपना गुस्सा भेज दे, अपने पाक दूर को भेज दे ताकि वो हमें गाइड करे, इस कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने ज़हन को खोल दे, अपने दिलों दिमागों को आपकी हज़ूरी में खुदा बाप लाए ताकि ये कलाम रहेगा ना जाए बल्कि वापस मानी। हम इस पर अमल करें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और खुदा बाप अपनी जड़ पकड़े, 30 गुना 60 गुना 100 गुना पर लाने के काबिल बन जाए खुदा बाप। इस पर लगी मुझे आपका कलाम है, आपके फादर के लिए दुआ करती हूँ, उसका भी जिम्मा ले खुदा बाप, उसकी हर पूरी करनी बाप की तरफ से हो। जो कुछ भी कहे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से कहे, आपका पाक रूह को गाइड करे और खुदा बाप की कलमा कलाम हम तक पहुँचे। बस मैंने अपनी बरकतों से नवाजना तब पाक कलाम में लिखा है कि जहाँ भी मेरे नाम से हो 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। इस वक्त हमारा ईमान है कि हमारा खैमा आपकी आयतें भर चुकी है और हम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अपने कलाम के वसीला से, अपने नाम के वसीला से, अपनी बातों के वसीला से खुदा बाप ये हमारा ईमान है कि आप यहाँ मौजूद हैं और हमारी दुआओं को इंतजाम को सुन रहे हैं और खुदा बाप अपनी हिफाजत के साथ, बड़ी फजल और करम के साथ हमारी हिफाजत करना ताकि बाकी लोग भी आपके नाम में बढ़े और इज्जत और जलाल आपका नाम पाए। खुदा बाप हम बढ़ते जाए, आपका नाम खुदा मंद होता जाए, आप बढ़ते जाए और खुदा बाप सबके साथ होना, सबकी रहना हिफाजत करना। खुदा बाप बच्चों के लिए फाइल के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप, इनका भी जिम्मा लेना ताकि अगला प्रोग्राम भी खुदा बाप आपकी मर्जी के मुताबिक हो सके। बाप मैं फिर दुआ करती हूँ इस कलाम के लिए खुदा बाप पूरी कलीसियाओं के रूह को, एक जान को, एक बदन को अभी से तैयार कर दे खुदा बाप, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए ताकि खुदा बाप हम अपने कान खोल कर अपने दिल को पूरी खुदा बाप अकल जान ताकत से आपका कलाम सुने और इस पर अमल करें और अपनी जिंदगियों में इसको जगह दें। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल करिए। आपके बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम आपकी जोरदार तालियों में खुदा के फादर को दावत देते हैं, जोरदार तालियां। और जलाली और नामयाब की खिदमत में सलाम का शुक्र हो आज सुन के लिए जो खुदा ने आपको हमें दी है ताकि खुदा का कलाम सुने, उसकी प्रशंसा करें। हम खुदा की बात हजूरी में दाऊद के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए
और ताकि खादिम भाई तारक शाकिर जो ग्रीन टाउन के हैं, डायरेक्टर हैं बीबीसी चैनल के, उनके ताबुत से आज हम खुदा उनकी तरफ और इबादत कर रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और एमजी लंगोडायर में हम आप सबको खुशामदीद करते हैं और खुदा आज कलाम के सबब से आप सबको बरकत अता करें। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा का खूबसूरत इल्हाम सुनिए। पतरस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब और 11वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदा का कलाम सुनेंगे। पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब 11वीं आयत से। प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बातकार जानकर तुम्हारी बात गोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाकात के दिन खुदा की तुम जीत करें। खुदा की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि खुदा की मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद करो और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत अता करे, आमीन। खुदा का कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए है, हमारी रोशनी है, हमारी निजात है। खुदा का कलाम हमारी ताजगी और हमारी बहाली है। जब हम खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है, खुदा का कलाम हमें तरबियत करता है, और खुदा का कलाम हमें नस्बुल आइन बताता है। बाइबल मुकद्दस में दुनिया का सारा आइन मौजूद है। दुनिया का जितना आइन चल रहा है, दुनिया का कानून जितना चल रहा है, ये सारा कुछ बाइबल से लिया गया है। ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये हर चीज जो हमें नजर आती है, ये बाइबल की तख्लीक है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिनके वसीले से लोग बरकत पाते हैं, जिनके वसीले से लोग तरबियत पाते हैं, जिनके वसीले से हुकूमतें चलती हैं। बाइबल का कानून सारी दुनिया इसके चुकीट घूमती है, और इसमें यह सिखाया गया है कि हम इंसान के किस तरह ताबे रह सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि हमें हुकूमत के किस तरह ताबे रहना है। देखिए, खुदा की खातिर इंसान के हर एक इंसान के ताबे रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। हुकूमतें, इख्तियारात खुदा की तरफ से, सारी हुकूमतें खुदा की तरफ से, लेकिन इंसान उसकी ताबेदारी करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है।
और हम इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क की सलामती की और बरकत की दुआ करते हैं और हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और खुदा हमारे साथ मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत का सबूत है कि खुदा यीशु मसीह जब हम गुनहगार थे तो यीशु ऐन वक्त पर हम गुनहगारों के लिए सलीब पर हुआ ताकि उसके बाद खाने से हम शिफा पाएं, निजात पाएं, रिहाई पाएं, मखलसी पाएं, आजादी पाएं। लिखे खुदा उनकी खातिर इंसान के हर एक इंसान के ताबे रहे। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आत्मा की जहालत की बातों को बंद करो और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, इस आजादी को गुनाह का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को आजाद जानो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से अपना फिदिया देकर हमें आजाद किया है। आजाद रहने के लिए हम किन बातों से आजाद हैं? हम कौमों से आजाद हैं, हम गुनाह से आजाद हैं, हम इब्लीस से आजाद हैं, उनकी कुव्वतों से आजाद हैं, गुनाह से आजाद हैं, पताल से आजाद हैं, जहन्नम से आजाद हैं। यीशु मसीह के लहू ने हमें आजाद किया है आजाद रहने के लिए, और यीशु मसीह का लहू हमें सारे गुनाहों से पार करने में सच्चा और आदिल है। और जो लोग उसकी परस्तिश करते हैं उसके लहू के वसीले से आजाद हैं, उसकी मुआफी के सबब से जो उसने हमें दी है उसके सबब से हम आजाद हैं। अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को गुनाह और बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, यानी अपने आप को खुदा की कलीसिया जानो, अपने आप को खुदा दर्श जानो, अपने आप को बाइबल के लोग जानो, अपने आप को मसीह के खून से धुले हुए लोग जानो। और जब हम उसके खून की ताबेदारी करते हैं, उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन अगर हम इंसान के ताबे नहीं, अगर हम हुकूमत के ताबे नहीं, अगर हम गवर्नमेंट के ताबे नहीं, तो फिर हम खुदा के भी ताबे नहीं, फिर हम अपने शहर के भी ताबे नहीं, हम अपने घर के भी ताबे नहीं। हमें ताबेदारी करने के लिए सबसे ये पहली जरूरी बात है कि हम अपनी हुकूमत का जो आइन है उसकी पासदारी करें, उसकी ताबेदारी करें, अपनी हुकूमत की ताबेदारी करें, अपनी हुकूमत के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। जिस मुल्क में रहते हैं हमें उसकी सलामती सबसे ज्यादा अफसर है, क्योंकि मसीहियों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क को हासिल करने के लिए मसीहियों का बराबर का हिस्सा है। और पाकिस्तान में हमें अक़लियत समझा जाता है, बहुत सारे लोग मसीहियों को नाचीज समझते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है तुम शाही कायमों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत हो, और तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, बल्कि अब खुदा की उम्मत हो। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल की रोशनी के मुताबिक हम शाही कायनों का फिरका है, हम खुदा की खास मलकियत हैं। बहुत सारे मसीही अपने आप को कम तर समझते हैं, ईसा से कमतरी का शिकार रहते हैं, खौफ में रहते हैं, परेशानी की हालत में रहते हैं, हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं हैं। लेकिन बाइबल हमें ये कहती है फरिश्तेगान आपके साथ हैं, आप आसमानी मखलूकात आपके साथ है, बर्रा आपके साथ है। बाइबल का यहोवा जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया है, जिसने सारी कायनात को अपने दम से बनाया है,
वो हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम नाचीज नहीं हैं, हम रात किए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि हम खुदा के लोग हैं। हम मसीह का बदन है, मसीह का जलाल है, मसीह की रोशनी है। बाइबल के चेहरे का नूर हमारे अंदर चमक रहा है। हम दुनिया के नकमे लोग नहीं हैं, बल्कि दुनिया के चुने हुए लोग हैं। मसीही कौम का इंतखाब पूरी दुनिया में होता है। बाइबल मुकद्दस सारी दुनिया में पढ़ी जाती है और हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हम मसीही हैं। बहुत सारे मसीही इस बात से खौफ ज़दा है कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, खौफ खाते हैं, डरते हैं। लेकिन बाइबल तो हमारी पहचान है, सलीब हमारी शान है, यीशु का लहू हमारी निजात है, यीशु का लहू हमारी पहचान है। बाइबल की रोशनी हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब हम इसको अपनाते हैं तो हमारे दिल मुनव्वर हो जाते हैं, तारीकी से हम निकल जाते हैं, हम रोशनी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि रोशनी हमारे अंदर है। यीशु मसीह का जो नाम है वो आफ़ताब सदाकत है, वो सच्चाई का सूरज है। वो सच्चाई ही इसलिए शुरू हुई है ताकि सारी दुनिया उसके वसीले से निजात पाए, क्योंकि लिखा है आसमान पर और जमीन पर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। निजात का बानी सिर्फ यीशु मसीह है। इस दुनिया में बेशुमार रसूल हैं, नबी हैं, रबी हैं, तफी हैं, बेशुमार लोग हैं इस दुनिया में, मर मिटे हैं, सूर में हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। हर घुटना उसके हुजूर में झुकेगा और हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। दुनिया के बादशाह, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के नबी, दुनिया के रसूल, दुनिया की सारी मखलूकात, फरिश्तेगान, आसमान की मखलूक और जमीन की मखलूकात बर्रे के सामने झुकती है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वही प्रस्तिश, इबादत, हम्द, कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, और कोई इस दुनिया में इस लायक नहीं। सिर्फ यीशु ही प्रस्तिश के लायक है, तो वो ही इस लायक है कि उसे सिजदा किया जाए। उसी ने हमें आजाद किया है, उसी ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, और हम इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाएं, बल्कि अपने आप को आजाद जाने और खुदा के बंदे अपने आप को जाने। ठीक है, अपने आप को खुदा के बंदे जानो। इसका मतलब है कि अपने आप को खुदा की कलीसिया जानो। इसका मतलब है अपने आप को खुदा का खानदान जानो। इसका मतलब है अपने आप को जमीन पर मुसाफिर और परदेसी समझो। हमारा असली वतन, हमारा असली जो घर है वो आसमान पर है, जिसके बारे में लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे पहले ही कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। और यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर आसमान की बादशाही में नहीं आ सकता। यीशु राह है, यीशु जिंदगी है, यीशु सच्चाई का तराजू है, और दुनिया की सारी मखलूकात उसके कब्जा में है, और दुनिया का तराजू इंसाफ यीशु मसीह के हाथ में है। और बादशाह अपने तख्त लेकर ताज यीशु के कदमों में रख देंगे, क्योंकि यीशु बादशाहों का बादशाह है। यीशु तबीब आज़म है, यीशु सारी दुनिया का बादशाह है, आसमान का भी बादशाह है और जमीन का भी बादशाह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही जमीनी बादशाही नहीं है, मेरी बादशाही आसमानी बादशाही है, मेरी बादशाही जलाली बादशाही है, जिसके बारे में यशायाह नबी खूब उसके हक में कहते हैं कि उसकी बादशाही को ज़वाल नहीं है, उसकी बादशाही
का आखिर नहीं है, बल्कि वो दाऊद के तख्त पर अब से अब तक हुक्मरान रहेगा। खुदा यीशु मसीह की बादशाही कभी खत्म नहीं होगी, ला तब्दील है, ला दुआर है, उसकी बादशाही हमेशा रहेगी और जो कोई इस पर ईमान रखेगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत अता करे, आमीन। हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाइए और दुआ करें, कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें, कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुशकिस्मत लोग हैं क्या मसीही हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं क्या मर्रे के लहू से धुल चुके हैं, आप खुशकिस्मत हैं आप मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं, आपका नाम किताबे हयात में दर्ज किया गया है, आप कीमती लोग हैं, मर्रे के लहू से धुल चुके हैं। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आए हैं, तेरी पाक हुजूरी में आकर हम झुकते और सिजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी खूबसूरत आवाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ये खुदा हम सबको बरकत दे, तेरा कलाम जो जिंदा है और मौसर है, तेरा कलाम जो ला तब्दील है, तेरा कलाम जो हाँ के साथ है, तेरा कलाम जो सच्चा है, तेरा शुक्र करते हैं। हमें इस कलाम पर अमल करने का फضل अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमें नजराने के लिए, कलाम के लिए बंद करेंगे। आसमान और ज़मीन के जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी साइश हो। पाक खुदा तू भला, तेरी शफकत होती है और तेरी वफादारी खुश रहती है। यीशु नासरी इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावंद इस हदिये नजराने के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद जिन हाथों ने दिया है खुदावंद उनको तू बरकतों से माला माल कर, और खुदावंद तेरे कलाम में भी लिखा है कि खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। खुदावंद जितने भी तेरे हजूर आज सर झुकाए बैठे हैं, खुदावंद इन सब के लिए मैं तेरी खास बरकत चाहता हूँ, इसी यीशु नासरी के नाम से। आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात कही जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उसकी हिफाजत अंत लेकर तमाम ईमानदारों पर, हाज़रीन पर हमेशा हमेशा रहेगी, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन। पीपीसी चैनल देखने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदावंद बहुत सारी बरकत दे। पीपीसी चैनल की तमाम नशरियात आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पीपीसी चैनल को YouTube पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि पीपीसी चैनल के तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंच सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।